सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस अभी लगे हैं और इन सैंक्शंस को आप किसी भी टर्म में ले लें, सीवियरिटी के टर्म्स में ले लें, तो उस हालत में ये सैंक्शंस कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि इसका रशियन इकोनॉमी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, जीडीपी कितनी डाउन होगी और इंटरनल सिचुएशन कैसे उनकी अफेक्ट होने जा रही है, और साथ में फिर ये बताएं कि इंडिया रशिया के ट्रेड पे इससे क्या फर्क पड़ सकता है। ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऐसा है, एज फार एज सैंक्शंस आर कंसर्न्ड, sanctions are being used as a political tool for economic revenge against Russia. So if we see, Russian economy will suffer to a certain extent immediately, but Russia has been facing sanctions in one way or the other for last so many years. And since 2015, because of Crimea, earlier in 80s, it was because of certain other reasons. So Russia has been facing these sanctions off and on. And India has also faced sanctions off and on, so to say. So Russia has learned to live with these sanctions, and threat of economic revenge doesn't perturb Russia, because most of the times Russia has been self-dependent. Yes, it needs technology, it needs certain other sectors to focus on, but more or less, even if the sanctions stay for next 2 years, 3 years, 5 years, Russia is on the path of making its economy relevant to its own self. It is more or less self-dependent. So nothing much will happen. The only thing is, if we see the hypocrisy of the Western world, the US, the European nations, they are in so dire need of Russian gas and oil that despite having sanctions, these people or these hypocrites, they have not stopped their purchases of Russian oil and gas. And they are preaching to the nations or threatening the nations to, like India, to stop purchasing from Russian things, or Russian oil. In fact, recently there was a news that the purchase of Russian oil and gas by the US has increased 43% after imposition of sanctions. So their hypocrisy is well known. तो अपने आप तो रोक नहीं रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि भैया तुम मत खरीदो। ये दादागिरी है ना, सीधी सीधे। तो इनकी आदत पड़ गई है बुलिंग की। They never came across a situation where both Russia and US, India had to side one way or the other, but this time India has been taking a very measured and a considered stance of being neutral. And that is fine, because we have to protect our interests. US is protecting their interests. अगर वो आज रशियन ऑयल और गैस ना मिले तो उनके यहाँ तो वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इट विल गो बर्सर्क। सिमिलरली यूरोपियन नेशंस का है। तो मतलब अगर वो खरीद रहे हैं तो ठीक है, और हम अपने नेशन के उसके लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए वो गलत है। सो अगर हम रशियन से, जो आपका सवाल था, रशिया की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, रशिया की इकोनॉमी में दिक्कत आएगी, नो डाउट अबाउट इट। परचेजेस उसके कम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि रशिया के फ्रेंड्स नहीं है वर्ल्ड ओवर। एक बंद करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी में आ तो जाएगा, काम चलता रहेगा, नो डाउट, बट दिस विल ऑल्सो हेल्प रशिया बिकम मच मोर रेजिलियंट टू इट। सो इन अ वे इमीडिएटली दिक्कत होगी। अब जैसे वीट का है, वीट कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं होता, वो जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं वीट as animal feed, not as human feed. So वो वहां तक उनको दिक्कत होगी, उसके बाद they'll find alternative ways, and Russia is capable enough of doing it like any other country which rises to the occasion. It is all right, there is no issue in your answer. मुझे सिर्फ एक ही सिचुएशन लगती है। अभी देखो, एज फार एज रशिया इज कंसर्न, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ऑयल बेचता रहे। यू नो, whatever way it does, it is up to them कि कितना डिस्काउंट देता है और कौन कौन से बायर्स उससे कंटिन्यू रखते हैं खरीदना। तो ऑयल बेचना या एनर्जी बेचना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट उससे एक्सचेंज रेट भी इसका स्टेबलाइज होगा और इकोनॉमी भी स्टेबलाइज होगी। ये फैक्ट की बात है। नाउ यूरोप और जो यूएसए और उसके जो दोस्त हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो रशियन ऑयल या गैस पे अपनी डिपेंडेंस कम करें,
और वो दोनों इसी उधेड़बुन में लगे हैं कि अमेरिका इस द पॉइंट विद अमेरिका इज के दिसंबर तक आते आते हमने उसके ऑयल और गैस पे जो डिपेंडेंस है उसको कम से कम कर देना है, और जैसे ही वो रेवेन्यू आना कम हो जाएगा तो दे आर अंडर दिस इम्प्रेशन कि इधर सैंक्शंस और वो रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा, तो रशियन इकोनॉमी का जो उनका प्रोजेक्शन है मींस कि -15% ये जीडीपी उनकी जाएगी एक साल के अंदर। तो उसके बाद मेरा ये गैस्टिमेट है कि दे आर एक्सपेक्टिंग देयर विल बी प्रॉब्लम्स इनसाइड रशिया एंड पुतिन विल फेस द डोमेस्टिक इंटरनल म्यूजिक, और उस हालत में फिर प्रॉब्ली कंप्रोमाइज़ करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा पुतिन के लिए और ऑफ कोर्स उनके लिए भी। ये इस पे जरा डालो आप। ऐसा है, पुतिन हैज फेस्ड मेनी सच dissident events in his country in last so many decades that he has been at the helm of affairs. So he is quite adept, or he is quite experienced in handling those internal dissidents, और किस तरह से वो करे dissidents को handle, that is their way of doing it. We may or may not like it, but they have been able to control it. The other thing is, if we see breakup of Soviet Union, the dissimilar kind of republics went away from Soviet Union and Russia remained. So Russia is one of the biggest states which existed in that, or was the biggest constituent of Soviet Union, so it stayed back. अब homogeneous है thinking, homogeneous cultural patterns हैं which were not gelling with Kyrgyzstan, Uzbekistan and all those constituents of the erstwhile Soviet Union. तो वो तो अलग हो गए। तो अब पुतिन के लिए रशिया में इंटरनल सिचुएशन कंट्रोल करना आसान है, और जब एक्सटर्नल थ्रेट होती हैं तो जनरली इट हैपेंस विद एवरी नेशन कि वो जो नेशनलिज्म की बात है, दे स्टैंड टुगेदर, एंड वंस दे डिसाइड टू स्टैंड टुगेदर दे विल बी एबल टू फेस एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड वी हैव अ गुड एग्जांपल ऑफ इजराइल, एक छोटा सा कंट्री नाक में दम करे हुए है पूरी सब तरफ मिडिल ईस्ट में फॉर डेकेड्स ऑल टुगेदर। सपोज दैट काइंड ऑफ नेशनलिज्म इज अवेलेबल इन रशिया, फिर आप देखो क्या हाल करेगा। आप सैंक्शन लगाते रहो, कुछ नहीं होगा। सब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहे हैं। आप चाइना को देख लो, क्यों नहीं करता है यूएस? चाइना कुछ करता रहे। जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उसका उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, एवरीबॉडी नोज इट। पाकिस्तान की ऊ तक नहीं निकली क्योंकि उसको पता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। सो इट इज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट व्हिच विल ड्राइव। रशिया विल फेस डिफिकल्टी, बट Russian people will be resilient enough to face that. That is my way of seeing the kind of interactions I have had generally. तो मेरे हिसाब से तो वो they'll be able to cope up with it. The other thing is, आज की तारीख में अमेरिका का रशियन ऑयल पे डिपेंडेंट होना बहुत अहम है, और उसी वजह से वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। वो इंटरनेशनल वो स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस में भले ही वो सब कुछ कर दें, बट ऑयल और गैस को उन्होंने उससे रखा हुआ है। So sanctions are general sanctions, they are not product specific sanctions. हाँ, product specific sanctions होंगे तब दिक्कत होगी। For example, 2012 में जब ईरान से हम ऑयल खरीद रहे थे, मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ, तो हमने अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए। So we converted our exchanges in rupee real terms. जब हमने रुपी रियल टर्म्स में करना शुरू करा तो we were out of that ambit. After that, America imposed product-specific sanctions. तब हमें दिक्कत आई, but we found a way out of it through also. So same thing with Russia only. अब ये जरूर है जो पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं, और वो हैं alternate mechanisms are being discussed by India, China, Russia at different levels for so many years, and something concrete is coming out of it, and this is a good opportunity for India, Russia, and China to have their own payment systems. We don't have to be dependent. हाँ, as far as other दिक्कत क्या हुई स्विफ्ट वाले उसमें, I'm just taking this a little forward when you say economic difficulty. स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस जब बंद कर दिए, हिपोक्रेसी यहाँ पे भी है। आप इटली को अलाउ कर रहे हो उनको गुची बैग्स एक्सपोर्ट करने के लिए रशिया को, क्योंकि इटली नीड्स मनी है। वहां पे स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस आपने रोके नहीं। इंडिया
Indian exporters have exported or payments are due to Indian exporters to the tune of $500 million from Russia to India, and that is generally through SWIFT mechanism. तो 7-8 बैंक्स को उन्होंने डिसअलाउ कर दिया स्विफ्ट मैकेनिज्म से. सो दिक्कत तो हमारे यहाँ भी है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे उनको पैसा नहीं मिला, पैसा बीच में अटका हुआ है. सो टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, इफ वी आर गोइंग इन फॉर रूपी रूबल ट्रेड, there are no existing mechanisms, but yes, we'll find a way out. आप देखें पिछले fortnight में there were so many visits, including the visit of Russian foreign minister. So things are moving in a direction where we can have bilateral mechanisms free of all the sanctions and other trade. उसके implication क्या होंगे अभी आप बात कर लेंगे इसके बाद. ओके, तो आपका मतलब बिल्कुल क्लियर कट है कि रशिया एंड ऑल अदर ऑयल और गैस बायर्स दे विल फाइंड अ वे आउट टू हैव द ट्रेड. यू नो, इट मींस कि रशियन they already have जर्मनी ने साफ मना कर दिया और ज़्यादा बेच लेंगे तेल को, क्योंकि डिस्काउंट पे जब देंगे तो नेचुरली लोग ज़्यादा खरीदेंगे भी. भाई इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है इन एनी केस वो ऊपर जा रहा है, ऊपर और भी जा सकता है. तो उस टाइम पे डिस्काउंटेड रेट पे रशिया से मिलेगा तो रशिया का ऑब्वियसली तेल ज़्यादा बिकेगा. सो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर. दैट पॉसिबिलिटी इज देयर. द अदर थिंग इज, अगर किसी को करंट प्राइसेस पे डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्यों नहीं खरीदेगा? अगर नहीं खरीदेगा तो वो उसकी बेवकूफी है उस देश की. आइडियलिज्म में कौन जीता है? उससे पेट थोड़ी भरते हैं. अल्टीमेटली वी हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल. भले ही हम 1% ले आए, हो सकता है हमारा 1% है वो 10% हो जाए बढ़ के. Yes, quite possible. Yeah. And the only thing is how strong we are to resist these pressures and keep the interest of the people of this country in mind. India. I got it. अभी आप मेरे को ये बताइए कि रशिया से जो एक्सपोर्ट है, बेसिकली ऑयल इज वन, तो इंडिया ऑब्वियसली ऑयल तो एक्सपोर्ट करने वाला नहीं है. उसके अलावा और क्या क्या एक्सपोर्ट हैं और विद इन रशियन इकोनॉमी, क्योंकि काफ़ी वेस्टर्न कंपनीज हैं जो अभी बाहर जा रही हैं, यू नो, आउट ऑफ द सैंक्शंस और वट एवर मे बी द रीजन्स. तो इंडिया की कंपनीज के लिए रशिया के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं? मीन्स हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे और क्या क्या बिजनेस हम अपने सेटअप कर सकते हैं रशिया में? As of now, there is not much which India can do immediately. It will take a couple of years to develop those mechanisms and platforms and market in Russia. Immediate market is maximum. One of the biggest commodities which we export to Russia is tea and cloth, yarn. Okay. Garments, है ना? What about pharma segment? Pharma segment is also there, but to a very small extent, and generally these are the generic medicines. So, but this will become significant in the India-Russia trade if the sanctions continue. Because even the Indian companies who have to invest there, set up plants or find markets will take some time. And we also have to bypass the sanction mechanism with these bullies जो उन्होंने international उसमें कर रखा है. तो अभी once the rupee ruble trade kind of a thing is there, it is heavily tilted towards Russia because India doesn't buy much from Russia except for weapon and weaponry systems. We don't have a big market as far as the purchase is concerned. Similarly, Russia or food or tea and garments, and to a small segment, the pharma sector, medicines. So, if we have to develop trade, it will have to be a long-term thing. Short-term में तो immediately हम कुछ नहीं कर सकते. अगले 2 साल में 3 साल में नहीं कर सकते. हाँ, ये जरूर है, यहाँ से बनी जेनेरिक मेडिसिन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड अ मार्केट फॉर दैट एंड ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाट एल्स वुड हैव डिमांड इन रशिया, सो टू से, इन द अदर वे अराउंड. ओके, हाउ डू यू सी द पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग द आर्म्स इन द सेंस, 2 तरीके से मैं देख रहा हूँ. अगर ये सैंक्शंस लंबी चलती हैं और ये लड़ाई लंबी चलती है तो उस हालत में इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि रशिया का जो आर्म्स का एक्सपोर्ट है और उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे इक्विपमेंट और वो सब आते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ S-400 तो हमने लेना है, कोई अफ्रीकन कंट्री तो उनसे लेने वाला है नहीं. लेकिन उसके अलावा बहुत सारे वेपन्स हैं, वेपनरी है, एयरफोर्स की भी, नेवी की भी, आर्मी की भी.
और इंडिया में यहाँ पे ये लोग आर्म्स अभी एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो डू यू थिंक देयर इज ए पॉसिबिलिटी इन द लॉन्ग रन कि जो रशियन बायर्स हैं, मतलब रशियन आर्म्स के जो बायर्स हैं अफ्रीका में या बाकी जगह, इंडिया वहाँ पे रशिया को रिप्लेस कर सकता है क्या? लॉन्ग रन की मैं बात कर रहा हूँ। रिप्लेस ना भी करे तो कॉम्प्लीमेंट तो कर ही सकता है। इट मे नॉट बी एबल टू रिप्लेस रशिया इन द मिड टर्म और द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में तो कॉम्प्लीमेंट्री रोल तो प्ले कर ही सकता है। अब आप देखें, जब ब्रह्मोस मिसाइल है, भले ही टेक्नोलॉजी कहीं से आई, हमारे बायर्स है ना इमीडिएटली अवेलेबल हमें, चाहे वो फिलीपींस के उसमें हो, चाहे किसी और कंट्री के उसमें हो। सो डेफिनेटली विल बी एबल टू सप्लाई आर्म्स, बट that may not be the major portion of India's exports. Okay. The other thing is our dependency on Russian arms has been there as a part of legacies since 50s. जब 53 में इंडो-सोवियत ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया था उसके बाद से, but these arms have definitely been replaced to a certain extent by other suppliers also. राफेल आया फ्रांस से, हमारा सुखोई को रिप्लेस हम कर रहे हैं या उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली वी आर बाइंग वेपन सिस्टम्स फ्रॉम इजराइल, यूएस टू सर्टेन। अगर आपको याद हो तो जगुआर हमने यूके से खरीदे थे जगुआर जमाने में, फ्रांस ये कंपनी। हाँ, यस, बट बेसिकली तो यूके कुड हैव सेड कि हम मत बेचो, तो कैसे बेचता फिर वो? हाँ, पहले हमारा जो इंपोर्ट था टोटल वो ऑलमोस्ट 64-65% था, अभी वो 46% पे आगे बैठा है रशियन आर्म्स। उससे भी अब जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात करी है इस सरकार ने, उसमें वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्टेड आर्म्स, सीइंग द करंट और लर्निंग द लेसन्स फ्रॉम द करंट यूक्रेनियन वॉर, एंड दिस हैज गॉट एन एडेड थ्रस्ट। पहले भी बात हो रही थी पिछले 5-6 साल से, बट पिछले 6 महीने में इस पे थ्रस्ट ज्यादा है, एंड दिस विल यील्ड रिजल्ट्स इन द कमिंग ईयर. No doubt about it. Be it arms, be it missiles, be it tanks, be it aircraft, we have to develop our own technology. अभी HAL भी 1 महीने में 2 तेजाज बना रहा है, 1 महीने में 2 फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, और ये रीजनेबली अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहा है। तो नेचुरली प्रोग्रेस है। हाँ, नहीं प्रोग्रेस है, और इसमें भी लोग कह रहे थे, जो क्रिटिक्स थे, कि साहब इसमें आपने तो वो अलग अलग जगह से चीज लेके उसको असेंबल कर दी है, बट इवन असेंबलिंग दैट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। सो काम किया है अच्छा, नो डाउट अबाउट इट, एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद द नेवल आर्मामेंट, बी इट द बिल्डिंग ऑफ शिप्स। वी हैव बीन फेयरली गुड इन बिल्डिंग आवर ओन शिप्स, कॉर्वेट क्लास के हों या इवन सबमरीन्स हों। वी given the situation will be able to develop एक example बड़ा अच्छा हम कोट कर सकते हैं इसमें। many years ago when we were developing PSLV GSLV rockets for launching our satellites, we needed cryogenic engines, and America imposed sanctions on us, and they threatened Russia not to export cryogenic engines to India. But we got the technology, we developed it, and we are much more successful than compared to any other nation as far as rocket technology is concerned. तो कमर्शियल बेसिस पे तो हमने यूरोपियन और अमेरिकन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है यूजिंग द सेम क्रायोजेनिक इंजन जिसपे हमें अमेरिका आंख दिखा रहा था। नीरज, अब 2 क्वेश्चन हैं बेसिकली। पॉइंट ये है कि यू हैव गॉट रशिया, यू हैव गॉट चाइना, एंड यू हैव गॉट इंडिया। नो, अभी इंडिया को मैं बाहर रखता हूँ फॉर द टाइम बिंग, वो भी आएगा, बट फॉर द टाइम बिंग अभी बाहर रखता हूँ। एंड अदर साइड यू हैव गॉट रशिया एंड इंडिया। अभी आप देख रहे हो जो वोटिंग पैटर्न जो जनरल असेंबली में लेटेस्ट हुआ है, और उससे पहले भी जो वोटिंग पैटर्न हुए हैं, ऑब्वियसली इंडिया की रशिया के साथ वो रिलेशनशिप नहीं है जो चाइना रशिया के साथ बिल्डअप कर रहा है। उसके अपने इंटरेस्ट हैं विसेविस यूएसए, हमारा अपना इंटरेस्ट है विसेविस यूएसए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो वोटिंग पैटर्न अगर आप देखो तो यूएन जनरल असेंबली में जो वोटिंग हुई है, ह्यूमन राइट काउंसिल की जो उससे रशिया को बाहर करना था, वो जो बूसा में जो इन्होंने किया है, ऐसा वो कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि वहाँ पे जो मैसेकर हुआ है, जीनोसाइड हुआ है, वो
ह्यूमन राइट्स का वायलेशन एंड ऑल दैट, वो सब तो वी लीव इट एट वन साइड। लेकिन जहाँ तक वोटिंग पैटर्न की बात है, रशिया ने बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि यहाँ पे अगर आप एब्सटेन करते हो, क्योंकि जो वोटिंग का जो वहाँ पे रूल है वो ये है कि 2/3 ऑफ द टोटल प्रेजेंट, तो अगर आप एब्सटेन करते हो तो वो वोट बेसिकली रशिया के अगेंस्ट में है। और रशिया इस बात के लिए बड़ा कीन था कि इंडिया वहाँ पे उसके फेवर में वोट करे, और इंडिया ने नहीं किया। और रशिया ने ये रजिस्टर किया है कि यस इट इज़ अगेंस्ट अस एंड इट इज़ डेफिनेटली अगेंस्ट अस। और उससे पहले इफ़ यू रिमेंबर, इस पर्टिकुलर वोटिंग पैटर्न के लिए एक्चुअली एंथोनी ब्लिंकन ने भी 2 बार फॉरेन मिनिस्टर से बात किया, और इधर रशिया भी प्रेशराइज कर रहा था। माई पॉइंट इज़, अब ये जो रशिया इंडिया की रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप कभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती जितनी रशिया की चाइना के साथ हो सकती है। तो उस हालत में हाउ डू यू परसीव एज द वोटिंग तो और भी होने वाली है जनरल असेंबली में, ये लड़ाई तो चलती रहने वाली है, और इसमें ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग, लोगों के इंटरेस्ट, ये सब आते रहेंगे, इंडिया दोनों के बीच में रहेगा। तो हाउ डू यू विजुलाइज कि हमारा वोटिंग पैटर्न अगेन हम अपने इंटरेस्ट को देखते हुए तो करेंगे इन एनी केस, बट हाउ शुड वी बैलेंस इट आउट कि रशिया के ऊपर हमारी डिपेंडेंस फॉर द टाइम बीइंग कुछ ना कुछ रहने वाली है, और हमारे लिए वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो हाउ डू यू सी द एंटायर सिनेरियो? एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड ऑन दिस? I am seeing the scenario from the Indian point of view, and from the Indian point of view, what India did is perfectly in sync with its thinking and its philosophy of thinking for its people first. As far as Russia China is concerned, वो भी बड़ी ephemeral relationship है, इतनी गाढ़ी नहीं है। चाइना ने भी बहुत बार रशिया के अगेंस्ट वोट किया है या वीटो करी है चीजें, बट बीइंग नियरली सिमिलर गवर्निंग पैटर्न्स, कम्युनिज्म या सोशलिज्म जो भी बोलते हैं, वो नजदीकी हमें लगती जरूर है, बट रशियन बियर एंड चाइनीज ड्रैगन दे कैन नॉट गो टुगेदर एट ऑल। उनके भी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट से चाइना के किस कंट्री के संग बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। सो जो चाइनीज थिंकिंग है दैट कैन नॉट जेल विद द वर्ल्ड व्यू विच एवर कंट्री इट इज। सो हमें हमारा ये सोचना कि वो इस वोटिंग पैटर्न या सिमिलर वोटिंग पैटर्न या इवेंट से रशिया और चाइना पास में आ जाएंगे, they can come closer together maybe because of certain economic interests, but as far as world power is concerned, as far as geopolitics is concerned, China will definitely try to dominate. The chance it has not got in so many decades, क्योंकि अभी तक, और चाइना भी कब से आया है 70s में, जब वो निक्सन और किसिंजर ने शुरू करा था, उसके बाद से ही चाइना थोड़ा सा प्रोमिनेंस में आया। उससे पहले तो उसकी इकोनॉमी भी वो नहीं थी, but they learned their lesson fast, and from 86 onwards, the way they have industrialized themselves and become a supplier to these Western nations के यहाँ से सारी जॉब्स तो चाइना शिफ्ट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शिफ्ट हो गई। और आज भी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करने की बात करते हैं बड़ी बड़ी यूएस में और यूरोप में, even if they have expertise, their cost structures are such that nobody will buy their product, even if it is of good quality. So ये जो इक्वेशंस बन रही हैं और यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग पैटर्न है, रशिया ने भले ही कहा है कि इंडिया इट हैज रजिस्टर्ड इट्स प्रोटेस्ट कि इंडिया इज अगेंस्ट अस, इट्स फाइन, पर हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। एंड इंडिया हैज मेड इट वेरी क्लियर आल्सो कि वी डोंट वांट वायलेंस। इफ यू वांट वी कैन आल्सो मीडिएट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा ही है हमने। और नहीं भी है, और जो मैसेकर हुआ है या और हम चीजें सुन रहे हैं, वॉट एवर इज हैपनिंग इन यूक्रेन, माई व्यू इज वी नीड टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज द वेस्टर्न नेशंस आर द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल हु डू प्रोपेगेंडा। इन्होंने, आप देखें, इराक में, लीबिया में कुछ भी नहीं था, उसके बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो हो हल्ला मचाया और ड्रामा किया, और उसके बाद उन नेशंस को रगड़ दिया इन्होंने, सिर्फ अपने इंटरेस्ट पहुंचाने के लिए कि सस्ता तेल मिलता रहे, तो इनकी इकोनॉमी चलती रहे, इनके लोगों को परेशानी ना हो। और दूसरा, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इट इज द यूएस व्हिच शुड हैव बीन टेकन टू द ह्यूमन राइट्स एंड किक्ड आउट ऑफ द यूएनएचआरसी। द रीजन इज मैडलिन ऑलब्राइट ने 2 लाख बच्चों को ऐसे ही वो जो बमों से वो करके वो करा, और शी सेड फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस वी नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग। दैट वाज द इंटेंट शी हैड मेड क्लियर, जो उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी Madeleine Albright. She passed away recently. May her soul rest in peace. But
the kind of atrocities her nation did in Syria, in Iraq, her soul should not rest in peace to that extent. ओके, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंडियन इंटरेस्ट जो है वो हमारे थॉट प्रोसेस में रहना चाहिए और हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना वोटिंग पैटर्न हमें कुछ सोचना ही नहीं चाहिए भाई, आपस में लड़ रहे हैं, हमसे पूछ के लड़े थे क्या? वो हमसे पूछ के उन्होंने वो करा था क्या? हम किसी लेवल पे उन्होंने नहीं करा और अब कह रहे हैं कि साहब तेल मत खरीदो, क्यों ना खरीदो भाई, सीधी चीज है। आई एम श्योर ये जो प्रेजेंट जो हमारा डिप्लोमेटिक कोर है ना, ये पास्ट के कंपैरिजन में अलर्ट भी है और सेंसिटिव भी है इंडियन रिक्वायरमेंट के लिए, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। इनफैक्ट शशि थरूर भी एक्सेप्ट करता है ये बात पार्लियामेंट में। ओके, नोट दैट शशि थरूर को छोड़ दीजिए, वो भी अपना इंटरेस्ट देख के बात कर रहा है, उसको वो भी अपना इंटरेस्ट देख के बात करता है उसको। अच्छा, उसको मिल जाएगा कुछ। अब आता है बड़े इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे, क्वाड पे। अब देखो ऐसा है, अभी तक जो डिस्कस किया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट ही था। हाँ, कोई बात नहीं। तो अभी आते हैं क्वाड पे, आते हैं। अभी दो चीजें, एक तो 2+2 का जो डायलॉग अभी यूएसए में मेरे ख्याल से 11 तारीख कल से है वो। आज, हाँ कल से है, आज 10 है ना, कल 11 तारीख से कल को है वो 2+2 का, और दूसरा है क्वाड। नाउ ये जो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अमेरिका की अपनी लिमिटेशंस हैं, रशिया की अपनी लिमिटेशंस हैं और हमारे खुद के नेशनल इंटरेस्ट हैं, पर मैं सोचता हूं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे और यूएसए के इंटरेस्ट पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा कोइंसाइड हो रहे हैं, और वो जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मैचिंग का जो सिस्टम है ना, वो और बढ़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज इंडिया की डिपेंडेंस रशिया पे भी कम होने वाली है सूनर और लेटर, ये धीरे धीरे हो जाएगी, कुछ आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में, और कुछ इसलिए कि जो थोड़ी बहुत डिपेंडेंस रहेगी वो फ्रांस और प्रॉब्ली यूएसए, ये सब उस तरीके से मुझे आज की डेट में लग रहा है। और उसमें ऑफ कोर्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर चाइना का है। अब चाइना की जो अभी जो लेटेस्ट इनका जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आया था, आज के न्यूज़पेपर में आपने देखी होगी रिपोर्ट, उसने कहा कि उसने ऑफर दिया कि हम हॉट स्प्रिंग से हम विड्रॉ कर लेते हैं, डिसएंगेज कर लेते हैं, नॉट एग्जैक्टली विड्रॉ, डिसएंगेज कर लेते हैं। तो इंडिया वाले स्मार्ट थे, उन्होंने कहा नहीं, हॉट स्प्रिंग से वो तो 1 किलोमीटर पीछे हट रहा था, हम 4-5 किलोमीटर पीछे हट रहे थे। तो इंडिया वालों ने मतलब उस तरह का जो ऑलिव ब्रांच वो दिखा रहे थे, ऑब्वियसली इंडिया असर्ट कर रहा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। बट अब मुझे बताइए कि चाइना के लिए पहली बात तो ये कि क्वाड के प्रति इतना सेंसिटिव चाइना क्यों है? जो सिचुएशन है उसमें एक तो क्वाड के प्रति उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा क्यों है, और उसमें इन पर्टिकुलर इंडिया के पार्टिसिपेशन को लेके चाइना को सबसे ज़्यादा चिंता है। अगर उसको ऑप्शन दिया जाए तो वो बोलेगा कि आप दे कैन बार्गेन ऑन दिस, कि आप क्वाड में पार्टिसिपेट ना करें, और देन ऑफ कोर्स वी कैन डिस्कस सी द बिगर पिक्चर, ऐसा वो बोलते हैं। तो ज़रा इसमें थोड़ा सा एनलाइटन करो भाई हमें आप। देखिए ऐसा है, फिर वही बात अटकती है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, राइट? हमारे आसपास नेबरहुड में सर्टेन सुपर पावर्स मेड देयर बेसेस, दे फाइनेंस दोज कंट्रीज, तब हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हैं? और उसमें चाइना भी शामिल है एक, तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, और बड़ा क्लियर सपोर्ट था, आर्म्स भी सप्लाई करे, सपोर्ट भी दिया, यूएन जनरल असेंबली में हमारे अगेंस्ट हर जो था वो वीटो किया उन्होंने। वी वर एट अ डिसएडवांटेज। आज अगर हमारा इंटरेस्ट है क्वाड में पार्टिसिपेट करके जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, see that is also one of the regions where we see trade coming up, shipping routes बड़ी सारी हैं उधर जो हमारे इंटरेस्ट में है, सो हम क्यों ना उसमें पार्टिसिपेट करें। और उसको डर इसलिए लग रहा है कि अकेले भले ही हम कुछ ना कर पा रहे हो, हमारे 3 और साथी जो है मिलके कम से कम सपोर्ट तो करेंगे। एंड विद द काइंड ऑफ अप्रोच इंडिया हैज हैड ओवर लास्ट डिकेड्स, पिछले 40-50 साल में हमने अगर काम किया है तो बड़ी ईमानदारी के संग करा है। इंडिया हैज नेवर बीन अ डिसीवर एंड इट हैज बीन वेरी क्लियर, इफ वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग इट, एंड दैट इज द काइंड ऑफ अप्रोच विच चाइना फेयर्स। अगर हमारा क्वाड में, आप क्वाड में भी देखें ना, हमने जो सैंक्शन, हमने ऑयल परचेज किया रशिया का, हमने सैंक्शंस का सपोर्ट नहीं किया,
या उसको बाईपास किया, तो क्वाड में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलते हैं वी अंडरस्टैंड इंडिया सेंसिटिविटी एंड पोजीशन। क्यों? उनको पता है कि क्वाड में इंडिया के बिना उनका काम अधूरा है। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ, दे आर ऑल्सो वेरी क्लेवर। इट्स नॉट दैट कि वो इंडिया को छोड़ देंगे, छोड़ इसलिए इंडिया को लेस ले रहे हैं, दे आर यूजिंग इंडिया एज अ पॉन इन देयर स्ट्रेटेजी विद चाइना, एंड इंडिया इज हैप्पी टू प्ले अलोंग एज a significant partner, not a pawn, significant partner in Quad with to protect its interest. India has never said that we are against China or we are acting against China, and India is not in that way doing anything of that sort. So Quad में participation से China को दिक्कत होनी है. The fallout of participation in Quad are numerous. It does not stop at military cooperation. It does not stop at just the strategic interests. It has the potential to expand into trade. It has potential to expand in partnerships. Bilateral relationships will strengthen, and obviously the population in India will benefit. Why would China want that? जब वो साउथ चाइना सी में कर रहा है, it wants its presence and dominance in that, and India is thorn in the flesh there. So obviously उसको परेशानी होनी है. But I think India's stand has been very considered, and as you rightly said, I really admire the current foreign setup in India, which has been doing very well, and hope it does so in the future also, and does not buckle up with the international pressure. बहुत हो गई इन लोगों की दादागिरी. अब उसमें दो फॉल आउट तो क्लियर ही होगी. एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. हाँ जी, है ना. हाँ जी. और वो तो हाँ जी, क्लियर कट इस रीजन की वजह से है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के जो ट्रेड रिलेशंस हैं अच्छे खासे ख़राब हो रखे हैं, और वो रहेंगे उसी तरीके से. और दूसरा, जापान का प्राइम मिनिस्टर भी अभी आया था, तो अच्छा खासा उसके साथ एग्रीमेंट हुआ. तो बेसिकली क्वाड जो है एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बन रहा है. और we need to have these नहीं, participation in Quad by India is also necessary to counterbalance some of the ill effects which are coming around. yes, बहुत चीजों में, क्योंकि even the powers who are participating in Quad, they will think twice before acting harshly against India within Quad. है ना? कहीं और करने से पहले उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जरूरी है, इसको प्रोटेक्ट करो, तो इंडिया का भी अच्छा है. दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस फॉर इंडिया. ओके नीरज, अब लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली. अब मैं पाकिस्तान के ऊपर पूरा डिस्कशन तो नहीं कर सकता, मगर पाकिस्तान की जो पोजीशन है, यू जस्ट थिंक ओवर. As I said earlier, Pakistan is not a country worth discussing. That's okay. But the point is कि न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, अब उसमें इंडिया अपने आप को कहाँ देखेगा? और अज्यूमिंग दैट रशिया की इकोनॉमी डाउन होगी, इट विल नॉट ब्रेक डाउन, बट इकोनॉमी रशिया की डाउन होगी, रशिया की चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ेगी, चाइना विल बी बिग ब्रदर, रशिया विल बी स्मॉल ब्रदर. आई दिस इज माई गेस्टिमेट. उस हालत में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये लड़ाई अगर 3 या 4 साल कंटिन्यू रहती है, लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट लेवल पे इंसर्जेंसी डेवलप होती है, तो आप ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंज आएंगे और इंडिया अपने आप को कहाँ पाएगा? इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने, और हमें अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने बड़े अच्छे से आते हैं. विल वी कम अप? हमारा फिर वो तो होना चाहिए. We are already up. We don't have to think on that. We are already up, and that is the reason in last fortnight we had so many foreign visits, including UK, Japan, 10-11 टोटल. people were there. हाँ. तो अब होगा या नहीं होगा, इसमें तो क्वेश्चन है ही नहीं, अप ही अप है. Okay. The only thing is, देखिए, रशिया बिग ब्रदर या स्मॉल ब्रदर की बात नहीं है. दोनों, चाइना और रशिया भी शरीफ नहीं है, वो एक से ही है, बराबर के ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है उनमें. जिसका जब इंटरेस्ट आएगा तब वो होगा. हाँ, ये जरूर है कि इंडिया के साथ रशिया की रिलेशनशिप चाइना के मुकाबले काफी बेहतर है, और इट इज मच मोर बैलेंस एंड कंसिडर्ड. सो लेट्स टेक दीज आउट फॉर द मोमेंट. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, और आपने जैसे कहा कि यूक्रेन का अगर कंफ्लिक्ट, लो लेवल कंफ्लिक्ट एक्सटेंड करता है तो क्या होगा. हमारा अफगानिस्तान को जो एक्सपीरियंस है, हमने देखा लो लेवल कंफ्लिक्ट वहां भी था, बट इतना जरूर था, वो कंटेंट था विद इन दैट कंट्री, एंड नॉट मेनी कंट्रीज वर इन्वॉल्व.
और वो भी आप देखें, दैट वाज अ सेल्फिश रीजन व्हाई दीज कंट्रीज वर नॉट इन्वॉल्व्ड. जो यूरोपियन नेशंस हैं, आज वो यूरोप का जो उनसे लगा हुआ है उसमें आ गया तो उनको परेशानी होनी शुरू हो गई. वो ब्लू आईज और ब्लॉन्ड हेयर देख के उनके जो है नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो गए. If you see the broadcasts of these nations, I'm not talking of the people in the government or the people in power. I'm talking of the communication, the broadcast, the entertainers. और वो उनका ये कहना था कि जब बम फट रहे थे वहां पे या जब यूक्रेन में थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, they were saying कि this is not Russia, this is not Syria, this is not Afghanistan. यानी सीरिया और अफगानिस्तान है तो मना है तो उनको बम पटक के मार दो. एक वो ब्लू आइड और ब्लॉन्ड हेयर दिख गए तो उनको मत मारो. So this is the hypocrisy. We'll have to deal with this hypocrisy. It is going to stay. It won't it won't last or it won't end. इसी में एक चीज ध्यान आती है, आप देखें पिछले 30 साल से नॉर्वे श्रीलंका में आके मेडल कर रहा था. आज श्रीलंका की हालत खराब है तो नॉर्वे कहाँ है? मतलब ज्ञान देने के लिए सबसे आगे आ रहे थे, पीस ब्रोकर्स बन रहे थे एलटीटी और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, और पैसा आ रहा था उनका, विच सम पीपल से वाज गोइंग टू एलटीटी. तो आप एक तरफ से पैसा दे रहे हो और दूसरी तरफ से पीस की बात कर रहे हो. तो इस तरह के बड़े सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूक्रेन में भी आएंगे. इतना जरूर है, अब सिचुएशन देखें बड़ी मतलब ऑब्जेक्टिवली, अफगानिस्तान हमारे पास था तो हमें बहुत दिक्कत थी, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वी वर जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर. सेम सिचुएशन यूक्रेन की है, इसलिए उनकी हालत पतली हो रही है यूरोपियंस की, एंड दे आर नॉट यूज्ड टू इट. सो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, अगर हम अपना बैलेंस्ड और कंसिडर्ड अप्रोच रखेंगे, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, दुनिया वालों को दिक्कत हो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे तो इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है, तो वी हैव टू गो फॉर इट. And I think this will happen sooner or later. और as far as India emerging as a superpower is concerned, हमारा एक बार डिस्कशन हुआ था कुछ हफ्तों पहले या कुछ महीनों पहले, तब भी मैंने ये कहा था कि इंटरनल मार्केट हमारा इतना बड़ा है, अगर हम उस इंटरनल मार्केट को ही एड्रेस कर लें, we don't need any other nation, will be strong enough. and ये जितने हमारे आ रहे हैं ना, ये विदेशी हमसे पैक्ट्स करने, ये इस बड़े मार्केट को देख के ही आ रहे हैं और कुछ नहीं है. तो इतना जरूर है, हमारा जो इस समय लो वैल्यू मार्केट है, दैट हैज टू राइज इन वैल्यू. अब सॉफ्टवेयर है, वो लोग इसलिए खरीदते हैं कि सस्ते, वो बोलते हैं ना, ई कुलीज मिल जाते हैं. ठीक है, वो ई कुलीज भी टर्म उन्हीं की है, या बैंगलोर बोला करते थे एक जमाने में वो, बट जब जरूरत पड़ेगी तो यही आएंगे. सो इसलिए वी हैव टू डेवलप द वैल्यू ऑफ आवर मार्केट, रेज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड ओवरऑल इकोनॉमी, एंड विच विल हैपन. So, आप ये देखें वर्ल्ड में, and this is a truth, an economic power can only become a politically assertive power across the world, across the globe. क्योंकि बाकी को किसी से कोई मतलब नहीं. इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होंगे तो we can dictate terms to the purchasers and buyers both. तो इंडिया की पोजीशन तो ऊपर ही होनी है, अगर हम ढंग से बिना किसी कैंप में शामिल हुए अपना स्टैंड बनाते हुए चलते रहे. Cooperation is fine, but we are not competing with anybody for that matter. Yeah, thank you, Neeraj. It has been a wonderful discussion. You clarified so many points. Thank you. And of course, we will connect again. Thank you so much. Thanks a lot, Colonel Saab. It has been a pleasure talking to you. Thank you. Thank you.